So very good morning all of you students and welcome all of you. So today we are going to start the revision of number 14 chapter and the name is what? Factorization. So are you ready dear student? Okay, so let's start now the revision lecture. So let's start the video lecture. So now in this lecture, at first, now the chapter name is what dear student? Factorization means we have to factorize the algebraic expression. First, for the first algebraic expression like ax plus bx, okay, and we have to factorize this. So now at first we have to find the common factor. So now at first you write in the factor form like a multiplied by x and plus is b multiplied by x. Now there is the common factor is what? That x. So because it come in now the both. So it is what? The common factor. So we will take now the common ले लिया हमने, x कॉमन ले लिया. सो देन स्टेप नंबर 2. अब स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? वी हैव टू डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर. ये दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म में क्या करेंगे? वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर. सो नाउ a मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय x एंड प्लस इज b मल्टीप्लाई बाय x इज डिवाइड बाय x. ओके, देन वी डिवाइड इट. सो क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे. नाउ दे विल बी ऑल्सो कैंसिल. सो व्हाट रिमेन? दैट x स्मॉल ब्रैकेट a प्लस b. सो now the process is called what? The factorization of the algebraic expression. क्या किया इसमें हमने? इसका algebraic expression का क्या किया है? factorize. ऐसे स्टेटमेंट आपको गिवन होगी कि factorize, तो इस टाइप से आपको क्या करना है? उसका factorization आपको करना है. Understood? You note it down. Okay, then today we will solve students some more questions of the chapter. Like for first, okay, statement is the same. Factorize. Statement is what? Same. They say what? Factorize. For the first a, like my plus ny, and we have to factorize the algebraic expression. So now at first we have to find the common factor. दोनों में हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? द कॉमन फैक्टर. सो स्टार्ट टू फाइंड. अब ये दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? y एंड y. सो व्हाट? y इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द algebraic expression. सो वी राइट नाउ y एट वंस. y को एक बार लिख देंगे यहाँ पे. y अब क्या हो जाएगा? ओके, वेट अ मोमेंट. At first, now we will write in the factor form m multiply by y and then n multiply by y. अब ये दोनों में कॉमन आया y, so we take the common here y. So now we have to divide by y plus, ठीक है, now we n multiply by y upon also y. Understood? Y is divided by y and y is divided by y. So what remain here? Y small bracket m plus n. So understood? Like this we will now be factorize this type of the algebraic expression. Okay, for the second, for b, okay, now in this type the algebraic expression is what? 5a plus 10. okay, so for first we have to factorize. okay, so इसको factorize करेंगे. so we got 5 now we multiply by a plus, okay, when we factorize now 10 we have to write the prime factors. आपको पता है ना क्या होता है prime factor? yes, ठीक है. prime numbers now can be divided by only and only one and itself. So they are called what? The prime numbers. So
ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ नाउ 10 is 2 multiply by 5. Understood? Okay. Then after this we have to find now the common factor. So now the common factor, we can see very easily the common factor is 5. So we write here now 5 at once. Then we have to divide by the 5. Okay, 5 से हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे. 2 multiply by 5 upon 5. Understood? 5 ones are 5 and 5 ones are 5. So what remain, dear student? That a plus 2. Understood? तो ये टाइप से हमने क्या किया इसका फैक्टराइजेशन. सो यू नोट इट डाउन. Done. Okay, A and B. Okay, so ठीक है. Now then I level up for the C question. Six m square minus, okay, so ठीक है, दिस इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो फॉर नाउ स्टेप नंबर 1 वी हैव टू राइट इन द फैक्टर फॉर्म. ओके, अब ये 6 है, सो वी हैव टू राइट द प्राइम फैक्टर्स. सो द प्राइम फैक्टर ऑफ नाउ 6 इज व्हाट इज 2 multiply by 3. ठीक, अंडरस्टूड. नाउ देन ओके, स्टेप नंबर 1 कर देते पहले एंड देन इसको करते हैं हम सेपरेट. ओके, फॉर द फर्स्ट 6 multiply by m square minus now 18 multiply by m multiply n. So because they are different variable. कैसे वेरिएबल है ये डिफरेंट वेरिएबल है. नाउ देन आफ्टर दिस इज 2 multiply by 3. ओके, ये 6 के इक्वल होता है. देन ये आपका m है, इट विल वॉट, ठीक है, लाइक बी m multiply by m. वी हैव नाउ बी लर्नड इन द चैप्टर पावर्स एंड एक्सपोनेंट. आपका m स्क्वायर है तो इट विल इक्वल टू m multiply by m. सो देन आफ्टर दिस माइनस. ओके, आपको 18 के प्राइम फैक्टर करने में आपको इसकी टेक्निक सिखा देता हूँ. 18. ओके, सो नाउ फर्स्ट इट विल बी, ओके, दो फैक्टर हो जाएंगे. 2 9 जा 18. अब आपका 2 तो रहेगा, ठीक, एज इट इज. आपके 9 के क्या होते हैं 3 multiply 3. तो इसके कॉमन ओके, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 multiply by 3 multiply by 3 is multiply by, ठीक, m multiply by n. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. ओके, तो ये मेथड से हमने क्या फाइंड की. नाउ द प्राइम फैक्टर ऑफ 18. ये तीनों हो गए प्राइम फैक्टर. अंडरस्टूड. ओके, सो देन आफ्टर दिस, अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है. तो अब इनकी, ठीक है, जो कॉमन की बात करें, सो फॉर द फर्स्ट कॉमन इज 2. ओके, फॉर नाउ द सेकंड कॉमन इज 3. ओके, ठीक है, ओनली 1 3. सो बिकॉज उसके बाद यहाँ पे 3 नहीं ना, इसमें 3 होने से कुछ नहीं होगा. देन 1 m. ओके, ओनली 1 m एंड देन देयर आर डिफरेंट. सो वी विल राइट एज व्हाट 2, ठीक, 1 2 देन 3 एंड देन m. ये कॉमन ले लिया. 1 2 नाउ 3 1 2 एंड ये 3, ये दोनों में थे तो ये क्या हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएंगे. इनको बाहर लिख दिया एंड देन वी हैव टू नाउ बी डिवाइड बाय द सेम नंबर्स. हमने जो भी कॉमन लिया है वो हमको यहाँ भी डिवाइड करना है और यहाँ भी डिवाइड करना है. सो वी स्टार्ट टू राइट इज 2 multiply by 3 multiply m multiply by m इज अपॉन इज 2 multiply by 3 multiply by m. ठीक है, उसके बाद में आपका माइनस साइन है. इज 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by, ओके, एंड देन अपॉन इज 2 multiply by 3 multiply by m. अंडरस्टूड. सो नाउ इट विल व्हाट, अब ये कैंसिल हो जाएंगे. इज 2 1 जा 2. ओके, ठीक, m डिवाइड बाय m. इज 2 1 जा 2, 3 3 and then m. So what will now be remain here,
तो अब इसमें जो बचा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6, देन m। ओके, नाउ हियर रिमेन ओनली m। इसमें क्या बचा है आपका ओनली m बचा है, माइनस इसमें क्या बचा है 3 मल्टीप्लाई बाय n, सो 3n। ओके एवरीबॉडी, ये टाइप से हम क्या किया। ओके, यू सा हियर कि हमने इसमें स्टार्टिंग में क्या फाइंड किए थे, द कॉमन फैक्टर। ओके, आपने देखा इसके कॉमन फैक्टर, फिर उसके बाद क्या किया, वही कॉमन फैक्टर से उसको ब्रैकेट के बाद लिखा, एंड देन वी यूज द स्मॉल ब्रैकेट, एंड देन उसी वही कॉमन फैक्टर से हमने क्या किया, दोनों का इसका डिवीजन किया, एंड देन ठीक जो कैंसिल होते थे वो कैंसिल करके ठीक वी गॉट द आंसर। Understood? You note it down, and then we will solve some more question of now this chapter. You note it down. So then after this, okay, you don't worry. For number D. Then after this कोई अच्छा सा लेते हैं हम क्वेश्चन। ओके, for number 4। तो देखो ये क्वेश्चन लिया है। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फैक्टराइज दिस। हमको क्या करना है इसका हमको करना है फैक्टराइजेशन फॉर द फर्स्ट। आपका फर्स्ट क्या है, ए बी सी, ठीक, ए बी पी एंड देन ए बी क्यू। ये मैंने स्मॉल क्यू लिखा है, अंडरस्टूड। सो देन स्टेप नंबर 1, अब इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इज ए मल्टीप्लाई बाय बी इज मल्टीप्लाई बाय सी, प्लस ए इज मल्टीप्लाई बाय बी इज मल्टीप्लाई बाय पी, प्लस ए इज मल्टीप्लाई बाय बी इज मल्टीप्लाई बाय क्यू। So then after this the common factor are A and A, then after this B and B, so they are the common, so we follow the step number 2, we write here now the common factor, and then we have to divide, now take inside the bracket, so then like A multiply by B multiply by C is now divided by is A multiply by B, and plus is A multiply by B multiply by P is divided by also A multiply by B, and plus then A multiply by B multiply by Q is divided by same that A multiply by B. So understood. So then after this we will now be divide them, A now we cancel by A, B B, A B B, and now as the same we cancel them. What remain here, now here remain only, we multiplied them, so we got AB, then C remain, now plus P and plus Q. So this is what the answer of the question. Okay, अब ये फॉर्म को क्या बोलते हैं, ये आपकी फॉर्म कैसी हो जाएगी, ये ओके वेट अ मोमेंट, फर्स्ट फॉर्म इज नाउ एक्सपेंशन फॉर्म। ठीक, कैसी फॉर्म है वो, ये आपकी फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में आप बोल सकते हो। अब ये फॉर्म को आपने क्या किया है, यू हैव टू फैक्टराइज, आपने इसका क्या किया है फैक्टराइज, तो ये फॉर्म को क्या बोलेंगे फैक्टराइज्ड फॉर्म, और ये हो जाएगी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, ठीक, यू शुड नो, यू मस्ट नो, आपको ये पता चलना चाहिए कि ये फैक्टराइज्ड है और ये क्या है, ये एक्सपेंडेड है। व्हेन वी मल्टीप्लाई नाउ बी अगेन, अब देखो अगर इसका मल्टीप्लाई मैं करूं यहाँ पे फिर से, सो इट विल व्हाट, आप यहाँ पे देखना लाइक ए बी
स्मॉल ब्रैकेट सी प्लस पी प्लस क्यू, अगर इसका मल्टीप्लाई करूँ तो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या प्रॉपर्टी बोलो, सो इट विल व्हाट, फर्स्ट मल्टीप्लाई आपने सी के साथ किया, सो इट विल ए बी सी प्लस ए बी पी प्लस ए बी क्यू. So understood? So we will get the same as in the previous, जो स्टार्टिंग में हमारे पास में एक्सप्रेशन था हमको वही मिलेगा. तो इससे आपको क्या पता चला, वी फैक्टोराइज. अब इसमें हम क्या करते हैं, हम करते हैं वी टेक आउट द कॉमन फैक्टर टू आउटसाइड, इसके आउटसाइड में ले लिया एन, जो कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है वी राइट इन अ ब्रैकेट. अंडरस्टूड? ओके, मैं माइंड में इसको सेट करो. ओके, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा. वेट हियर. ओके, वेट. ओके, so now you pause the video and start writing. Yes. So then after this, for the next, ओके, अब इसके बाद हम जो भी फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटीज. ओके, सो फॉर स्टैंडर्ड 8 वी हैव ओनली 4 आइडेंटिटीज. अब ये आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी नाउ आर द स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूला. आप फॉर्मूले के बारे में आपने सुना है ना पहले, हम जैसे आपको कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, सो वी यूज नाउ द फॉर्मूला. बट नाउ फॉर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देयर आर नाउ गिवन some identities, and for standard 8 given only what, 4 identities. So we are going to learn one by one. Okay, for the first identity, okay, identity first. Okay, first identity now is what, when a plus b whole square. ओके, अब इसको हमको रीड कैसे करना है, अब इसको कुछ कैसे रीड करते हैं, ठीक, ए प्लस बी स्क्वायर. नो, ठीक, इट इज द रॉन्ग मेथड. वी विल रीड, ठीक, ए प्लस बी होल स्क्वायर. कैसे रीड करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर. व्हेन वी, ठीक, एक्सपेंड इट, एक्सपेंड करेंगे, सो वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस, ओके, एंड प्लस बी स्क्वायर. देन हाउ, ये कैसे बनी आइडेंटिटी, कोई अपने घर पे तो बनाई नहीं है मैंने. सो कैसे फॉर्म हुई आइडेंटिटी, द मेथड टू राइट द आइडेंटिटी इज व्हाट, यूजिंग द सिंपल मल्टीप्लीकेशन. ठीक, वी हैव लर्नड इन, नाउ द 9th चैप्टर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन वी मल्टीप्लाई लाइक ए प्लस बी बाय दैट ए प्लस बी. अब इसकी मीनिंग क्या हुई, बोथ आर द सेम. ओके, मतलब क्या हुआ, यू मल्टीप्लाई लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों में नंबर आपका सेम है ना, 2 2, लाइक द सेम. इसमें भी ए प्लस बी हो और इसमें भी ए प्लस बी हो, मीन्स द फर्स्ट टर्म इज नाउ सेम एंड सेकेंड टर्म्स आर ऑल्सो सेम. सो देन वी विल डू व्हाट, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ यूजिंग द डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन. सो अब इसको लॉक किया, वी मल्टीप्लाई बाय 1, a now be multiply by that a plus b. okay, so then plus, यहाँ पे प्लस लगाया, b is now be multiply by that a plus b as the same. बाद में हमने b का भी मल्टीप्लाई किया, so we will get that what using the distributive property a square. आपको पता चला a square हो जाएगा प्लस ab, ये क्या हो जाएगा प्लस ab. ठीक, देन प्लस, ठीक है, नाउ इट विल व्हाट, इट विल सेम एज ए बी. अब आपने देखा कि सर स्टार्टिंग में तो बी है, इसको बी ए बी लिख सकते हैं. यस, वी कैन राइट बी एस. ओके, दोनों इक्वल टू इक्वल है, ए बी लिखो या बी ए लिखो. नाउ बट कि ये लिखने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. उसमें पहले ए आता है, सो वी राइट फर्स्ट व्हाट ए एंड प्लस बी मल्टीप्लाई बी, इट विल बी स्क्वायर. ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है, लाइक टर्म.
दे आर लाइक टर्म, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, ये भी 1 ए बी, ये भी 1 ए बी, सो नाउ दे विल ओके 2 ए बी, सो नाउ दिस टाइप वी गॉट द आइडेंटिटी। तो ये सॉल्व करने से हमको क्या पता चला कि हम स्टेप नंबर 1 2 ये कम कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी से क्या होगा, यू विल नाउ बी रिड्यूस योर 2 स्टेप्स। आपका कितना टाइम बचेगा, यू थिंक, आप ठीक सोचो ये कि ये स्टेप आपको नहीं करनी है जो आपको ये फॉर्मेट में गिवन है। व्हेन a प्लस बी इज मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो इसको हम ये भी लिखते हैं ना, ठीक है, लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे इसको 2 स्क्वायर लिखते हैं वैसे इसको लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। सो अगर ये फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन हो तो यू विल सॉल्व लाइक दिस। बट नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू डू व्हाट, द रिवर्स प्रोसेस। अब इसमें रिवर्स प्रोसेस क्यों करनी है, सो बिकॉज वी हैव टू फैक्टोराइज, मीन्स ये फॉर्म होगी आपके पास में गिवन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू नाउ दिस फॉर्म। Understood everybody? You note it down and then we will solve now some examples so be related to the identity number 1. You note it down. Good. Okay, for the identity understood. For this we take one example, that m square plus example number 1, the m square plus 8m plus 16 and the question is factorize it. Okay, क्या करना है हमको, इसका फैक्टोराइजेशन करना है। वी हैव टू फैक्टोराइज द algebraic expression. So at first you have to identify that which identities should we use to factorize the algebraic expression. So for first we know that we have to use the first identity and then after the fourth identity we will learn to now we identify the suitable identity. Got it? Chalo. So now then after this we write in the standard form. Is in the standard form? Yes, but we use the small bracket and we write now that m square. Now then after this we will write the last term like, okay, so for now 16, so we can write in square of 4. Okay, we can write in the form of square of 4. तो ये क्या हो जाएगा आपका 16, it will what, square of 4, and then we will write the middle term using now this pattern. Okay, क्योंकि अगर जो आपका ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, so you can write in the form of this. तो आपके यहाँ पे पैटर्न क्या है, 2ab, यहाँ पे आपका a क्या है m और आपका b क्या है 4. So 2 multiply by m is multiply by 4. तो क्या आपको इससे ये मिलेगा, यस. ओके, स्मॉल ब्रैकेट यूज कर देते हैं, ये 4 टू जा 8 एंड देन आपको 8m यहाँ पे मिल जाएगा. सो इट मीन्स वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी. जो अगर आपको ये नहीं मिल रही है इसकी मिडल टर्म, सो यू विल नॉट यूज नाउ दिस आइडेंटिटी हियर. सो उसमें कैसा मेथड है, स्प्लिट मेथड. ओके, वो भी आगे सीखेंगे, वेट हियर. सो नाउ देन आफ्टर दिस इट विल व्हाट, अब क्या हो जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी first, okay, is what, when a plus b square, a plus b whole square, it will equal to that what, a square plus 2ab plus b square, and use a box here. Okay, so then we will solve using this. So we will write like this, what, that m plus 4 whole square. But okay, so आपका आंसर हो गया नो. It is not the perfect answer. We have to write in the factor form. So now there is a square. Okay, when 2 square, so we will write what, it's 2 multiplied by 2 like this. That m plus 4 whole square. So we will write now 2 times m plus 4 is multiplied by m plus 4. Now this is
your final answer. Got it? Okay, you note it down. So done everybody, dear students. Okay, you note it down this, and then you have to do what? You have to solve the 14th chapter. Understood? You have to solve what? Now the 14th chapter. In the 14th chapter, you have to solve the all example first. All example first, then you start to solve the exercise. So because the examples are very important. Okay, everybody, and then now from the next video lecture, we will start to learn from the second identity. Okay, everybody.